lecture we studied how to calculate the EM of a cell. Okay, you usually have a chemical reaction and you need to find its EMF of a cell while using electrochemical series. Okay, from electrochemical series you have to actually select a specific reaction and its reduction potential values. While using that values, you will be able to find the EM of a cell. And that is actually EM is equal to cathode minus reduction potential of anode. If you are working in the standard conditions, then it will be like this. Okay, standard reduction potential values. Okay, whenever there is a reaction, actually we are dealing with galvanic cell reaction. In galvanic cell, you have a chemical reaction, okay, and that chemical reaction is responsible for the production or generation of electrical energy. Okay, electrical energy. If you have a cell and there is a chemical reaction and you have a reaction in which is producing electrical energy, that electrical energy is actually the working of that cell. Okay, because you are getting electricity. If cell is going to work, then it will give you electrical energy in the form of work. And that is its maximum efficiency, maximum work. Okay, usually it gives you energy. Okay, we usually take energy in joules. That is equal to coulombs, mean charge multiplied by EM of cell. That is in volt. Okay, charge. ये क्या होगा? This is your energy. Which energy? Electrical energy is equal to charge. चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं? यूजुअली coulombs. So its unit is coulomb and EMF of a cell. उसको वोल्ट में मेजर करते हैं. Okay? So that I wrote joule is equal to coulomb multiplied by voltage. Okay? Clear? Yes, sir. Okay. It means this EMF, you can get this value if you have a reaction and you have identified which species is going to oxidize or which species is going to reduce, then you will easily be able to find the oxidation and reduction reaction. If you have once the oxidation and reduction reaction, you can find their reduction potential values from where? Electrochemical series. Okay, and then that values will be used finally to come up with EM of cell while using this formula. Clear? Once you have EM of cell, no problem is with the charge. Okay, this charge is actually, we call it total charge. We call it total charge. Okay, this is usually equal to N. And what is N? N is number of electrons involved in a reaction. ठीक है, कोई भी रिएक्शन जब होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? N multiplied by F. What is F? F is a Faraday constant. N is number of
electrons, okay, and F is Faraday constant. Okay, if you have two number of electrons in a reaction, then it will become N. Okay, 2. Suppose this is your reaction. Okay, how many electrons? 2 are involved in this reaction? 2 electrons. कैसे पता चला? चार्ज मीन कि A2 प्लस जा रहे हैं, मीन कि 2 जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस निकल रहे हैं, ऑक्सीडाइज। ठीक है, अगर इस तरह हो तो N की वैल्यू क्या होगी? 2। और अगर ये रिएक्शन हो now 4 Samira 3 वो भी ना क्रिटिकल बात। 5 2 देखिए, आपने बेसिकली ये देखना है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, and when there is a reduction, the electrons evolved from oxidation will be used for the reduction of species as the cathode and cathode. So electron 2 involved है इस रिएक्शन में। ठीक है, जो निकल रहे हैं वही जाके उधर रिडक्शन में यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन में। यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक तो नहीं यूज होगा, वो सारे यूज हो गए ना। तो क्या होगा कि अगर तो ये लिखा होता है, अब ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने B2 to 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है B में, तो मैंने 2 मोल्स भी ले लिया। क्या ले लिया? 2 मोल। अगर 1 मोल होता तो फिर प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल है यहाँ पे, मगर इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन के हैं, मगर जो रिडक्शन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रही है। तो इसलिए उन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए मैंने 1 मोल लेने के बजाय उसके कितने मोल्स ले लिए? 2 मोल्स। बात क्लियर हुई? ठीक है, नहीं हुई? मतलब अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अब आमिर की कैपेसिटी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है। ठीक है, रिएक्शन मैं मगर 2 दे रहा हूँ। अब वो कैसे रिएक्शन में सारे एडजस्ट होंगे, पूरे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आमिर 1 ले रहा है तो मैं आमिर जैसे 2 बंदे ले लूँगा। ठीक है, अब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही यूज हो जाएंगे, मगर एक आमिर और एक आमिर जैसा एक और। ठीक है, तो वो दोनों 2 पोल्स हो गए ना। सर लेकिन ये 2D भी जो है ना सर, दोनों यूज तो नहीं होंगे ना, क्योंकि वो भी 2 है, तो वो बराबर रहेगा। ये 2 बराबर करने के लिए लगाया ना। नहीं, दोनों साइड से अगर 2 भी है तो अगर आप देखें तो एक ही भी हुआ ना, अगर आप उसको नहीं इक्वल करें तो एक भी नहीं हुआ, यहाँ पे आपने उनको इक्वल नहीं कर देना ना। ठीक है, ये तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया ना, तो मोलैरिटी को। ठीक है, ठीक है, समझ आई? हाँ, तो इस तरह आप जो है वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर्ली यूज, मगर आप कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इवॉल्व हो रहे हैं और 2 ही फिर आगे यूज भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। फैराडे कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है, ये मोलर चार्ज लेते हैं यहाँ। ठीक है,
ये कैसे वैल्यू आती है? ये सिंपल है, इसको फैराडे कांस्टेंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब 1 मोल है तो 1 मोल क्या होता है 1/6 पर मोल, ठीक है। और एक का चार्ज कितना होता है 1.60910⁻⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ये है, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ वैल्यू इस तरह आएगी। ये आएगी, ठीक है। इसको आप लोग भी लिख सकते हैं। और इसको उन्होंने ना फिर 96 को उन्होंने योग कर दिया, 4 है ना, राउंड ऑफ किया 5, ठीक है। और जब ये 4 है तो क्या आ जाएगा, जो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो यही वैल्यू बेसिकली ये 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। अब अगर आपके पास रिएक्शन है, जिस तरह मैंने नीचे रिएक्शन लिखा, ठीक है, सपोज दिस इज योर रिएक्शन, अगर आपसे कहा जाए कि आप जनाब इसका रिलेशन निकालें, अभी मैं रिलेशन की तरफ आता हूँ, ठीक है जी। इसकी ईएम ऑफ सेल निकालें तो वो तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, ईएम ऑफ सेल निकाल लेंगे। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हो रहे हैं 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन का टोटल चार्ज निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है, टोटल चार्ज 2 मल्टीप्लाई बाई एफ, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। कूलम पर मोल, और ये 2 की वैल्यू है, ठीक है। और ये बेसिकली कूलम की वैल्यू है, इसको हम डायरेक्टली कूलम भी लिखते हैं, ठीक है। 96500 कूलम पर मोल है। तो अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस रिलेशन की तरफ आए, जूल किसके इक्वल है, इक्वल टू कूलम पर कूलम मल्टीप्लाई बाई वोल्ट। कूलम किसके इक्वल होगा, जूल डिवाइडेड बाई वोल्ट, ठीक है ना। तो इसका भी यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल चार्ज आ सकता है ना, ठीक है। तो एन एफ हो गया बेसिकली टोटल चार्ज जो भी रिएक्शन है। अब हमें करना ही है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की टर्म है, बेसिकली अल्टीमेट पर्पस क्या है, वी आर गोइंग टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, कि इलेक्ट्रिसिटी या सेल को आप कैसे थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेट करते हैं। तो हमें पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है -NFE लिखिए। थर्मोडायनामिक्स को आप जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करते हैं तो इस तरह, ठीक है, -NFE। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है 180 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन आपका क्या होता है स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में हो तो वो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब मुझे ये बताया कि टू हैव अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, उस रिएक्शन की जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, आपको एनर्जी नेगेटिव चाहिए,
तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और ईएम ऑफ द सेल पॉजिटिव होगी। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना? अच्छा, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और ईएम ऑफ सेल नेगेटिव। अगर आपने लास्ट लेक्चर को घर में जाकर पढ़ा होगा तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी लिखे होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव में भी होती है। अगर आप उनकी कनेक्टिविटी सही नहीं करते तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस कनेक्टिविटी है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए उनको जो कैथोड बनाते हैं उसको नोड बना दें, जो नोड बनाते हैं उसको कैथोड बना दें। ठीक है ना? ऐसे ही है। और यूजुअली ये देखा गया कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो उसको एनोड बनाते हैं। ठीक है ना? मैंने बताई थी बात। अच्छा, इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो आपके पास ये होती है, इसके इक्वल भी पढ़ा हुआ है आपने, है ना? अब इन दोनों को आप इक्वेट करें, माइनस एन एफ ई, ठीक है? अगर आप ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन एफ ई और आर टी, ऐसे ही है ना? आगे क्या हो जाएगा, बस ठीक है, नहीं होगा। अगर आप नेचुरल वाला इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालते हैं, एन एफ ई डिवाइडेड बाय आर टी। और अगर आप ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V क्या होगा, आर टी ओवर एन एफ, ठीक है क्रम, नेचुरल लॉ का इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो अगर आपको सेल की ईएमएफ पता है तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं, आप उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको ईएम ऑफ द सेल पता है तो इससे ये भी पता चल गया, अगर आप किसी रिएक्शन का आपको ईएमएफ नहीं पता, अगर आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, ठीक है, तो उससे आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं, उससे आप ईएम ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आर की वैल्यू क्या होती है, और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसको योग कर लें। टेम्परेचर भी आप स्टैंडर्ड सेक्शन में क्या होता है, 298 केल्विन, नीचे आ जाए। एन की वैल्यू वो जो भी होगी रिएक्शन में, ठीक है। एफ क्या होता है, कूलम पर मोल होता है, ऐसे ही है। मगर अगर ये वैल्यू जॉल में है तो वो भी जॉल में करे ना, तो वो फिर क्या बन जाती थी, जॉल पर वोल्ट, यही बनती थी ना। ये क्या हो जाएगा, जॉल पर वोल्ट पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे नेचुरल लॉ ऑफ K। अब यहाँ पे देखें, ये जॉल जॉल से कैंसिल, ये पर मोल से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऐसे ही है। या ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, करो जरा मल्टीप्लाई, अगर कर सकते हो। एट पर 314 मल्टीप्लाई बाई 298, ठीक है, डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट ऊपर आ जाएगा ना। फिर ये देखो, ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो वो, ठीक है, तो ये आ गया। आप अगर इसी चीज को आप यूं करना चाहें, इसको यूं भी ले सकते हैं। ये वैल्यू क्या आ गई,
ठीक है, जो नेचुरल लॉग होता है वो 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल होता है। ठीक है, Yes, sir. अब 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करें, जीरो पॉइंट 025 मल्टीप्लाई बाय 2.303, Yes, sir. 0.05, sir. 0.057 Yes, sir. 0.057 वोल्ट। तो आप ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, अगर ये भी ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमने लगा ली। ठीक है ना, अब अगर यहाँ से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, अब ये लिख लीजिएगा, ये 0.057, और अगर इससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सपोज एक रिएक्शन है जिसमें n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसका आंसर निकालो कितना आता है? जीरो पॉइंट 0.125. ठीक है, आपने इसको यूं लिख सकते हैं, आपने k की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. अगर a की वैल्यू गिवन हो, सपोज 0.4 वोल्ट है, कितनी है? 0.4. हाँ 41 वोल्ट e की वैल्यू है, 32. तो नेचुरल लॉग ऑफ k की यहाँ वैल्यू आएगी 32. 0.041 डिवाइडेड बाय 0.525 कितनी आएगी? 32. 32। इसके यूनिट्स क्या होंगे? कोई यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि ये भी वोल्ट में था, ये वैल्यू वोल्ट में थी, ये भी वोल्ट में आ गया, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल। अब k की वैल्यू क्या होगी? e रेज़ टू पावर 32 है। Yes. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, क्या आता है? ठीक है, sir. हाँ जी, Sir, ये 32.8 काफी बड़ी वैल्यू है, sir. 32.8 और इधर 0.41 डिवाइडेड बाय 0.0125. 32.8 कर लो, ये तो जस्ट मैंने आपकी तरफ से लिखी है, बहुत बड़ी वैल्यू. कोई भी है, मीन कि वो आपका Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Okay. ठीक है, तो इस तरह आप थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उनका पहचान करवा सकते हैं। ठीक है, Okay. ये मैं इरेज कर दूं? अब ये मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, तो ये आपके और जो प्रॉब्लम को सॉल्विंग को ध्यान से करेगा। मैं लिखता हूँ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर the following रिएक्शन क्या है? SN
ठीक हो गया जी? Yes. ये रिएक्शन है, इसका वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है? ये है आपके पास ठीक है, यही है ना? Yes. तो आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ओवर इधर n आ जाएगा, ऐसे ही है ना? ये ठीक लिखा है मैंने, Yes. है ना? n इधर आ गया ना, Yes. फिर वो ये चीज इसके नीचे आ गई। इक्विलिब्रियम k की वैल्यू क्या होगी? एक्सपोनेंशियल, ऊपर ये आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया ना आपका, ठीक है? अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको? n की वैल्यू और e की वैल्यू चाहिए। n कितना यूज हो रहा है? 2। तो n की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या रह गया? e कैसे निकालेंगे? अगर खुश हो रहा है, समझ आ गया? अगर e कैसे निकालेंगे बताओ? Sir, just E minus E not cathode. यस, कैसे? e और सेल क्या होती है? कैथोड माइनस एनोड। अब देखिए कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है? Yes. ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है चार्ज, ये ऑक्सीडेशन है ना? तो ये एनोड होगा, ठीक है? यहाँ से क्या हो रही है? डिक्रीज इन चार्ज, रिडक्शन है, तो ये कैथोड होगा। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है? इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज देखनी है आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो पहले आप रिएक्शन लिखिए जिसकी आपने वैल्यूज वहां से देखनी है। एक तो आपने ये वैल्यू देखनी है SN सॉलिड से किधर जा रहा है? ये इस तरह रिएक्शन लिखा हो या और इस तरह लिखा हो, वो एक ही बात है, ठीक है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ही बात। इसका जो भी पोटेंशियल होगा वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, ये एनोड है ना, तो इसका जो पोटेंशियल है वो -0.14 है वोल्ट, ठीक है, एनोड का। अब कैथोड क्या है? ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं। कैथोड का रिएक्शन क्या है? वो है Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Cu1 में जा रहा है, ऐसा ही है ना? ये वाला देखना है आपने रिएक्शन, 2 नहीं लिखा होगा वहां पे, 2 तो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 2 नहीं लिखा होगा। ये वाला रिएक्शन देखना है आपने, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखनी है, वो कितनी है? 0.15, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। आपको वहां पे ये भी एक रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा, इसके लिए देख लेंगे, ठीक है? आपने क्योंकि आप 2 से 1 में आ रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उस सिंपल एक कॉपर वाले रिएक्शन में, उसकी रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपने वो वाला रिएक्शन सेलेक्ट करना है विच शोज यूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके? तो उसकी ये वैल्यू है। तो अब यहाँ कुछ करें क्या? EMF सेल वैल्यू आती है, तो ये क्या होगा? कैथोड क्या है? 0.15 वोल्ट माइनस -0.14 वोल्ट, क्या वैल्यू है? 0.01. Sorry, plus होगा सर. प्लस हो जाएगी सर, Yes, sir. है? तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.29। क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। ई की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ठीक है? तो आप अब इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन भी गिवन है और ई भी गिवन है, निकाले जरा।
ये फार्मूला करके निकालो, शाबाश। हाँ मेरे बेटा क्या है वैल्यू? हम्म 22.56 नहीं, ई हाँ 23 चलो जो भी है वो दिखा सकता हूँ। काफी बड़ी है कितनी है, गिनो तो सही। 6 बिलियन के की वैल्यू एनुअल के की वैल्यू निकालो। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का यस सर कि आपने कैसे उनको रिलेट करना है। ये आ रहा है 23.2 है ना, ई 23.2 आ रहा है तो हाँ चलो अभी करो ना यार, ठीक है वो उसका ही निकाल लो के की शिफ्ट नेचुरल लॉग प्रेस करते हैं ना तो ये आ जाता है। कितनी वैल्यू? सर वो एंटी लॉग की वैल्यू नहीं आती इसमें, तो उससे पहले की 22 पर था उसका एंटी लॉग बताना। मोबाइल पे आ जाती है। अच्छा इसकी जो आंसर आता है वो के की वैल्यू है, वो आती है 7 10 to power 9 के की वैल्यू, ठीक है। अच्छा क्या आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? वो क्या होती है? है ना? सर मेरी भी ई की वैल्यू 11,000 समथिंग आ रही है। मेरी तो 6 कोई नहीं इसको कैलकुलेटर से करेंगे ना यस सर तो इट विल बी नियर 7 10 to 9, ओके सर ठीक है। ओके अच्छा अब गिब्स फ्रीक्वेंसी के लिए तो माइनस एन एफ ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है? 2 एफ 965 क्या है? कूलम पर मोल है ना, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी है? 0.29 वोल्ट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है? 55970 माइनस 55970 55970। सी कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट किसके इक्वल होता है? जॉल के। वो हमने शुरू में पढ़ा है, क्या होता था ये? सी मल्टीप्लाई में वी ओवर मोल, ठीक है। माइनस 55970 जॉल पर मोल, ठीक है। इसका मैं माइनस 55970 किलो जॉल पर मोल, ठीक है ना। तो इस तरह आप गिब्स फॉर एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेल की ईएमएफ आपको पता है तो कितना इंटरेस्टिंग था ये कि आपको आप कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ सेल से आप थर्मोडायनामिक्स के पैरामीटर में गिब्स फॉर एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आप उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इधर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर गिब्स फॉर एनर्जी की वैल्यू 0 आ जाती है, मीन के लिए कैथोड एनोड की वैल्यू 0 आ जाए तो। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे इधर गौर से देखना है आपने, ये आपके पास रिएक्शन गिवन है, ये इसको हम यूं लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं ना, इक्विलिब्रियम ऐसे लेते हैं ना आप, Yes. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है।
अब आपने मुझे ये बताना है, क्रिटिकल क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, क्या हो, Spontaneous. यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारा क्या हो, बताएं उसमें से जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेना है उसके लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए या प्रोडक्ट की ग्रेटर होनी चाहिए या रिएक्टेंट की ग्रेटर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन समझ आ गया। Spontaneous reactant हो जाता है. स्पॉन्टेनियस हम चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बने, ठीक है। उसके लिए अब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू में से प्रोडक्ट ग्रेटर होना चाहिए रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट लेस होना चाहिए रिएक्टेंट के या इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, Yes. तो ये पॉजिटिव है। अगर रिएक्टेंट ग्रेटर हो जाएगा तो ये नेचुरल लॉ ऑफ रेशियो का जब भी नेचुरल लॉ लेते हैं वो वैल्यू नेगेटिव में आती है। मीन के 0.5 है, 0.5 का क्या मतलब है, रिएक्टेंट इज इन ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है, पॉइंट समझ आया। Yes. और अगर ये वैल्यू नेचुरल लॉ ऑफ 1 क्या होता है, निकालो करो, नेचुरल लॉ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो क्या होती है, जीरो, तो ये ई 0 हो जाएगी, जब ई 0 तो जी भी 0, तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रिएक्टर और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, बात क्लियर हुई। तो इस तरह के एमसीक्यूज यूजुअली हम बनाते होते हैं जब आपका एंट्री टेस्ट होता है। सर एक क्वेश्चन है, जी। ये जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो हम सारा ईएमएफ के बारे में, ये ऑपोजिट है अगर वी आर कंसीडरिंग द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स स्पॉन्टेनियस नेगेटिव, लेकिन ईएमएफ इज इट्स पॉजिटिव। नहीं, बात वही है, बात नहीं, ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो गिब्स फ्री एनर्जी तभी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। आप गिब्स फ्री एनर्जी को ही ज़हन में रखें, ओके, उसके फार्मूला को ज़हन में रखते हुए आप बात करें कि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव कब हो सकती है, जब ई की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, ठीक है ना। ई का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं है, एक्चुअली हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड टू गेट गिब्स फ्री एनर्जी इन नेगेटिव द ईएम ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव। असल मकसद हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, होगी क्लियर बात, ओके। इतने दिनों बाद गाड़ी का टायर पंचर था सुबह। मैंने कहा इतने दिनों बाद, मैंने ये नहीं कहा कि इतनी देर बाद। सर इधर देखते हो। चले, तो अब हम लोग शुरू करने लगा हूँ मैं, वो हमारा इस सेमेस्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं, 2 लेक्चर होंगे इसमें, कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े चीज़ों को लेकर चले हैं, इवन के ऑनलाइन में भी काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल हो गई हैं कवर, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, आज का टॉपिक है वो जी एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास टाइम है ना, 5 नहीं 30 मिनट्स हैं अभी हमारे पास। हाँ, एड्जॉर्प्शन हम क्या करते हैं, कोई जब आपके पास कोई सॉलिड सरफेस होती है, क्या सॉलिड सरफेस होती है, उस सॉलिड सरफेस पे जब गैस या लिक्विड के पार्टिकल आके उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस क्या हो गया, the phenomenon in which gas or liquid molecules
in which gas or liquid molecules accumulate on the surface of solid. ठीक है, is called adsorption. बात क्लियर होगी ना? एक्यूमुलेट हो सकते हैं, या उसको हम एक और बड़ा उसका अच्छा सा वर्ड है दैट इज कंसंट्रेट. ठीक है, मतलब ये सॉलिड सरफेस है आपके पास, इसके ऊपर आके जो गैस के या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट हो जाते हैं. मीन कि अगर इधर उधर वो बिखरे हुए हैं तो यहाँ पे आके वो कंसंट्रेट हो जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन. इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने बहुत सुना होगा कि ये जो कपड़ों का कलर करते हैं, डाई एडसॉर्प्शन, समटाइम इसमें भी एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है. या आप ये वाटर से जो है डाई को रिमूव करते हैं, जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें डाइज होती हैं, आप चारकोल उसमें ऐड करते हैं. बड़ा प्रोसेस सुना हुआ है आपने, चारकोल ऐड करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो उस वाटर को डीकलराइज कर देता है ना. उसका जो कलर आ रहा है, मसलन मिथिलीन ब्लू एक डाई है, उसको पानी में आप मिक्स करें तो वो वाटर जो है वो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, प्योर वाटर नहीं रहता. अब उस डाई को आपको उस वाटर से निकालना है तो आप ये क्या करते हैं कि ये अक्सर ये जो फिल्ट्रेशन वाले होते हैं, ये भी इनमें भी इन्होंने भी कार्बन चारकोल रखा होता है, वो उसमें डालते हैं. चारकोल की जो एबिलिटी है वो ये है कि वो जो डाई के मॉलिक्यूल है उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा देता है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन. की इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन बताइए. तो एड्सॉर्प्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो टू बहुत इंपॉर्टेंट है. मसलन अगर ये आपकी एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और ये कुछ पार्टिकल्स इसके ऊपर आके आ गए, ठीक है, एड्सॉर्ब हो गए. दिस इज एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर आके अटैच करते हैं, उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होते. ठीक है, उसके अंदर नहीं जाते. ये जो होती है सॉलिड सरफेस, ये जो हमने ब्लैक बनाई है, ये जो सॉलिड सरफेस बनाई है, ठीक है, ये जो सरफेस है ना, ये सॉलिड सरफेस है सारी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट. क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट. और ये जो ऊपर पार्टिकल उसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं इनको कहते हैं एड्सॉर्बेट. ठीक है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेट. बात क्लियर हुई? ये जो सॉलिड सपोर्ट होती है, जिस तरह हम सॉलिड सपोर्ट है और वो कंसंट्रेशन में वैसे ज़्यादा ही होती है सॉलिड सपोर्ट, तो जिस तरह सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, इसी तरह एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट होता है ज़्यादा कंसंट्रेशन में. सॉलिड सपोर्ट जो है जिसके ऊपर आगे चीज़ों ने अटैच होना है. अक्सर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मैं याद नहीं रख पाता, तो यू कैन कंपेयर इट विद सॉल्यूशन. ओके, तो क्या क्या टू कंपोनेंट्स हैं, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेंट क्या हो सकता है? सॉलिड सपोर्ट है. एड्सॉर्बेट क्या है? वो आपके पास गैसेस भी हो सकते हैं, वो आपके पास लिक्विड. मतलब डाई की बात की तो वो लिक्विड था. इसी तरह अगर किसी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो जाती है तो वो गैस है, वो एड्सॉर्ब हो रही है. ठीक है, तो ये है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस. फिर एक और वर्ड सुना हुआ है आपने, एब्जॉर्प्शन. क्या सुना हुआ है? ये आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वो बड़ा एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फर्ज करें ये सॉलिड है ना, तो पार्टिकल्स आके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अब अगर वो एब्जॉर्ब होके इसके अंदर पेनिट्रेट कर गए तो दिस इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, पेनिट्रेशन जो है वो पार्टिकल्स की उस सरफेस के अंदर, उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. और अगर वो सरफेस के ऊपर ही एब्जॉर्ब रहते हैं तो उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन. यूजुअली ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इनिशियली वो प्रोसेस जो है उसमें एड्सॉर्प्शन हो रही होती है, बट आफ्टर सम टाइम वो
एब्जॉर्प्शन भी शो करवा देगा, ठीक है ना। मसलन डाई है, ये किसी चीज़ पे आप लगाते हैं तो पहले तो वो एब्जॉर्ब होती है एंड आफ्टर सम टाइम इट हैज़ द चांसेस टू एब्जॉर्ब। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ये क्या है? एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं जी? सॉर्प्शन। मीन कि सॉर्प्शन इज एक्चुअली फिनोमेना वेयर बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑन द सरफेस, whereas in case of absorption there is a penetration in the surface। बात क्लियर हुई? एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है एंड देन सॉर्प्शन क्या होती है, ओके। तो ये आपके पास प्रोसेस होते हैं। ये एब्जॉर्प्शन फिजिकल, अब आगे इनका वो मैकेनिज्म होता है। तो ये होता किस तरह है कि अगर आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि ये प्लाटिनम है, ठीक है। प्लाटिनम आपने सुना था, रिडक्शन में यूज़ करते हैं आप यूजली जब साइक्लो या आप सिंपल अल्कीन्स होती हैं उनमें हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो उसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लाटिनम या पैडिलम में है। अच्छा, अगर ये प्लाटिनम है आपके पास, जो मैं कहता हूँ इस तरह लिक्विड में आप देखते हैं ना कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन की फोर्सेज है वो डिफरेंट होती हैं जो बल्क में होती हैं, पता है ना आपको। इसी तरह सॉलिड में भी होता है। तो अब ये जो है यूं होता है पार्ट, ठीक है। अब गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस है H2, तो वो यूं आके इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। H2 गैस, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये वीक बॉन्डिंग है। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एक बात, एब्जॉर्प्शन दो तरह से हो सकती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है एंड केमिकल। इस केमिकल को केमिसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है जिसमें चेंजेस आ रही होती है, फिजिकल बॉन्ड में चेंज नहीं है, क्लियर। और फिजिकल बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है एज कंपेयर टू केमिकल, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये जो अब हाइड्रोजन गैस जब प्लाटिनम की सरफेस पे आती है तो पहले ये फिजिकली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये वीक बॉन्ड बनाया मैंने। और ये कौन सी फोर्स के तहत मिलता है? वान डर वाल फोर्स। कौन सी इंटरेक्शन होती है? ये वान डर वाल। मगर आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। आप इसीलिए तो वो इथीन होती थी ना, तो H2 ऐड करते थे, कैटलिस्ट के ऊपर H2 आती है, जब इथीन आता है तो H2 ब्रेक होके एक H इधर चला जाता है और एक H इधर। तो अब पहले ये फिजिकली एब्जॉर्ब होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यूं हो जाता है, पहले फिजिकली और फिर क्या हुआ केमिकली उसके साथ। अच्छा, क्या फिजिकली जब बॉन्ड होता है उसको तोड़ा जा सकता है ना, वापस उस हालत में ला सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ वीक फोर्स। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होती है,
ठीक है, तो केमिकल अब ये वापस उस हालत में आएगा नहीं, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होती। ये एक बड़ा मेन एमसीक्यूज आपका तैयार किया। अब आप बताएं कि जब केमिकल बॉन्ड होता है और एक फिजिकल बॉन्ड है, किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है? केमिकल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि केमिकल सॉर्प्शन में, मीन की केमिसॉर्प्शन में या केमिकल एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है एज कंपेयर टू फिजिकल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में यूजुअली जो हीट है वो 5 किलो कैलोरी तक होती है, और इसमें 20 से 100 समटाइम 50 भी लिखा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व, तो एक्सोथर्मिक रहेगी। देखें ना कितनी। और फिजिकल में आपके पास वंडर वाल फोर्स है, डिफरेंस आप लिख सकते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वंडर वाल इंटरेक्शन है, केमिकल में केमिकल बॉन्ड है। ठीक होगी बात। फिजिकल रिवर्सिबल है, केमिकल रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल में थोड़ी हीट जनरेट होती है, केमिकल में हायर हीट होती है। ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। केमिकल में आप रिएक्शन का पता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऐसी बात है। ठीक है। अच्छा, प्रेशर का इफेक्ट क्या हो सकता है? केमिकल पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता, केमिकल एब्जॉर्प्शन पे, मगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है। जब गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कंसंट्रेट हो जाते हैं, और जब प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो फिर वीक हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट होता है कि सरफेस एरिया का इफेक्ट होता है। अगर आपने अब पानी में से डाई को रिमूव करना है, तो अगर आप उसमें जो चारकोल है, जो एब्जॉर्बेंट है, वो ज़्यादा डालेंगे तो वो जल्दी कर लेगा, अगर कम डालेंगे तो वो कम करेगा। फिर एक और पॉइंट है, वो है क्रिटिकल टेम्परेचर का। वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको आप लिक्विड ईजिली बना सकते हैं। ठीक है। जब लिक्विड ईजिली बना सकते हैं उनका, तो वो फिर उनको आप कंसंट्रेट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं आइसोथर्म, वो हम फिर बात में करेंगे। ठीक है। आइसोथर्म है, फिर उनकी कुछ सरफेस फिनोमिनन है, और इसी तरह आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है जो हमारी लैब होगी परसों, है ना, थर्सडे को। हाँ, उस लैब में हमने वही एक्सपेरिमेंट करना है, एब्जॉर्प्शन वाला, चारकोल वाला। डाई लेके उसको एब्जॉर्ब करेंगे और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो मैंने एक रखा हुआ था, मैंने कहा जब एंड पे आएंगे तो एक एक दोनों एक्सपेरिमेंट कर लेंगे।